Hello my dear brothers and sisters, my friends and family. मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मेरे दोस्तों और परिवारों, I greet you all in the wonderful name of Jesus Christ. मैं आप सभी का प्रभु यीशु मसीह में अभिवादन करता We हूँ believe in Christ that you are well and safe. और मसीह में विश्वास करता हूँ कि आप सभी अच्छे और सुरक्षित हैं। My beloved, when I was reading the word of God, मेरे प्यारों, जब मैं परमेश्वर का वचन पढ़ रहा था, the Lord, the Spirit of God gave me a thought about something. तब पवित्र आत्मा ने मुझे एक विचार दिया। The Lord made me to think about something. परमेश्वर ने मुझे कुछ सोचने पर मजबूर किया। My beloved, the Bible talks about how Jacob deceived his own father and his elder brother, disguising himself for a blessing. मेरे प्यारों, पवित्र शास्त्र ये बताता है कि किस तरह से याकूब ने अपने बड़े भाई एसाव का भेष बदलकर अपने पिता ईसाक को ठगा या धोखा दिया। We read that in Genesis chapter 27. और ये हम पवित्र शास्त्र के उत्पत्ति अध्याय 27 में पढ़ सकते हैं। My beloved, we also read in Genesis chapter 32 how Jacob received blessing from God. और मेरे प्यारों, अध्याय 32 में हम ये पढ़ते हैं कि किस प्रकार से याकूब ने परमेश्वर से आशीष प्राप्त किया। Hallelujah. हालेलुया। My beloved, there are a lot of words for us to read, so I'm going to cut the story short. मेरे प्यारों, हमारे पास कई ऐसे वचन हैं जिसे हम पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं इस कहानी को थोड़ा छोटा करके बताता हूँ। Because we are not able to read all the verses, I will recommend you to read Genesis chapter 27 and 32 to understand what I'm trying to say. और हम सभी वचनों को नहीं पढ़ सकते, इसीलिए मैं आपसे कहूँगा कि आप उत्पत्ति अध्याय 27 और उत्पत्ति अध्याय 32 को पढ़ें, ये समझने के लिए हम क्या कहना चाह रहे हैं। Hallelujah. हालेलुया। My beloved, in Genesis chapter 27, we read how Jacob disguised himself in the form of his own elder brother and he received blessing by deceiving his own father. मेरे प्यारों, अध्याय 27 में हम ये पढ़ते हैं कि किस प्रकार से याकूब ने अपने बड़े भाई एसाव का भेष धारण करके अपने खुद के पिता ईसाक को ठगा था। And you all know the story. और आप सब जानते हैं। Hallelujah. हालेलुया। My beloved, in Genesis chapter 27, verse 18, मेरे प्यारों, अध्याय 27 का 18वां वचन, Isaac asked his son Jacob, "What is your name? Who are you?" ईसाक अपने पुत्र याकूब से पूछता है कि उसका नाम क्या है। And the Bible says in verse 19, Jacob said to his father, "I am Esau, your firstborn." और 19वें वचन में याकूब ने अपने पिता से कहा, मैं तेरा जेठा पुत्र एसाव हूँ। Hallelujah. हालेलुया। In verse 22, और वचन 22 में the Bible says, "So Jacob went near to Isaac his father, and he felt him and said, The voice is Jacob's voice, but the hands are the hands of Esau." और 22वां वचन कहता है, तब याकूब अपने पिता ईसाक के निकट गया, उसने उसको टटोल कर कहा, बोल तो याकूब का सा है, पर हाथ एसाव के ही जान पड़ते हैं। Hallelujah. हालेलुया। My beloved, I'm going to talk about this to you. मेरे प्यारों, आज मैं इसके बारे में आपसे बात करने वाला हूँ। I'm not going to give you a long preaching on this. मेरे प्यारों, इसके लिए मैं आपको एक लंबी उपदेश नहीं देना चाहता, But I'm going to share with you what the Lord has put in my heart. लेकिन मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने मेरे हृदय में क्या रखा है। Hallelujah. हालेलुया। My beloved, you can see here that Isaac asked his own son, what is his name? मेरे प्यारों, आप यहाँ देख सकते हैं कि ईसाक ने अपने पुत्र से पूछा कि उसका नाम क्या है। This is because the Bible says in Genesis chapter 27 verse 1 that Isaac became very old and his eyes become dim. ये इसलिए क्योंकि उत्पत्ति अध्याय 27 का पहला वचन कहता है कि ईसाक की आंखें धुंधली हो गई थी और वो बूढ़ा हो गया था। Because of that he was not able to see. और इस वजह से वो देख नहीं पा रहा था। That's why he's asking him, who are you, what is your name? इसीलिए वह पूछ रहा था कि तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है। My beloved, because Jacob wanted to receive the blessings of his own brother cunningly, he disguised himself in his brother's outfit.
और मेरे प्यारों, क्योंकि याकूब अपने बड़े भाई एसाव का जो आशीर्वाद था, अधिकार है, वो प्राप्त करना चाहता था, इसीलिए उसने अपना भेष बदलकर बहुत चालाकी से वो प्राप्त किया। Hallelujah. हालेलुया। My beloved, after he cunningly received the blessings from his father, the Bible says that he ran away from his house. मेरे प्यारों, जब याकूब ने चालाकी से अपने पिता से आशीष प्राप्त किया, उसके बाद पवित्र शास्त्र कहता है कि वो जो था अपने ससुर के घर पर, लाबान के घर पर चला गया था। When you read Genesis chapter 32 verse 26, जब आप अध्याय 32वां का 26वां वचन पढ़ते हैं, the Bible talks about how Jacob was wrestling with a man throughout the whole night. पवित्र शास्त्र कहता है कि किस प्रकार से याकूब ने एक पुरुष के साथ पूरी रात मल्ल युद्ध किया। Listen to me very carefully. बहुत ध्यानपूर्वक सुने। In the previous part, Jacob was not wrestling, but he was deceiving to receive a blessing. अब देखिए किस प्रकार से पहले याकूब ने जो आशीष प्राप्त किया वो चालाकी से किया, उसने कोई युद्ध नहीं किया। My beloved, in the second part, Jacob is wrestling with a man to receive a blessing. लेकिन दूसरे भाग में याकूब जो है मल्ल युद्ध कर रहा है आशीष को प्राप्त करने के लिए। So my question is, what happened to the blessing that he has received previously? तो मेरा सवाल ये है कि उस आशीष का क्या हुआ जो उसने पहले ग्रहण किया था। Isaac blessed him. ईसाक ने उसे आशीष He दिया fled away with the blessing. और उस आशीष के साथ वो भाग गया। He worked with Laban for more than 14 years. उसने लाबान के साथ करीब 14 साल तक काम किया। He married both the sisters. उसने दोनों बहनों के साथ शादी की। He made a lot of wealth. उसने कई संपत्ति जुटाई। And he came back from Laban with 2 companies. और वो लाबान के साथ से कई साथियों के साथ आया। He came back with a lot of blessings. वो वापस आया कई सारे आशीषों के साथ। The Bible says that he ran from his house with the staff, but he came back with a lot of wealth and riches. पवित्र शास्त्र कहता है कि जो याकूब था वो एक छड़ी के साथ भागा था, लेकिन जब वो वापस आया बहुत सारी संपत्ति के साथ वापस आया। So my question is, he deceived and he received the blessing, but now he wrestles with God for a blessing again. तो मेरा सवाल ये है कि उसने ईसाक को ठगा और आशीष प्राप्त किया, लेकिन जब वो वापस आया तो उसने मल्ल युद्ध के साथ आशीष प्राप्त किया। So what happened to the blessing that he previously received? तो उस आशीष का क्या हुआ जो उसने पहले ग्रहण की थी? So what about all the wealth and riches that he brought with me? Is it not a blessing? तो उस सभी संपत्ति, उस सभी धन का क्या हुआ? जो आशीष जो उसने प्राप्त किया था वो काफी नहीं था। Having so much of cattle and wealth, why he is asking and fighting God for a blessing? और इतनी सारी संपत्ति, इतने सारे बैल भेड़ पशु के साथ उसके साथ आशीष था, वो क्यों उस पुरुष के साथ, वो परमेश्वर के साथ मल्ल युद्ध कर रहा था? My beloved, previously he disguised himself and he lied to his father that his name was Esau. मेरे प्यारों, पहले उसने अपने भेष बदलकर अपने पिता को झूठ बोला था कि वो एसाव है। In the same way, my beloved, today we disguise ourselves before God and we lie to God many times because we want to receive a lot of blessing from God. और उसी प्रकार से कि हम जो है परमेश्वर के सामने भेष बदलते हैं, उनके सामने झूठ बोलते हैं क्योंकि हमें आशीष प्राप्त करना है। We get converted, we become Christians, baptized and become a member of a church. हम परिवर्तित हो जाते हैं, हम बपतिस्मा ले लेते हैं और कलीसिया का सदस्य हो जाते हैं। We do everything a pastor tells us or our Lord tells us till we receive blessing. हम वो सब करते हैं जब एक पासवान कहता है और जो परमेश्वर कहता है, जब हम आशीष प्राप्त कर लेते हैं। Our voice is voice of Jacob, but our hands are hands of Esau. हमारी आवाज याकूब की तरह होती है, लेकिन हमारे हाथ एसाव की तरह होते हैं। We do that because we want to receive a blessing. और हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हम आशीष ग्रहण करना चाहते हैं। Once we receive the blessings or once we receive whatever we wanted from God, और एक बार जब हम आशीष प्राप्त कर लेते हैं, वो आशीष जो हम परमेश्वर से ग्रहण करना चाहते we हैं, slip away from our vision. और हम अपने दृश्य से खिसक जाते हैं। We slip away from the relationship of God and we run away from God. और हम परमेश्वर से संबंध के साथ जो है वो खिसक जाते हैं और परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। That's why second time when that man or the angel was wrestling with Jacob,
और इसीलिए जब दूसरी बार जब याकूब परमेश्वर और जो स्वर्गदूत था उसके साथ मल्लयुद्ध कर रहा था, He's asking Jacob, what is your name? और वो याकूब से पूछ रहा था कि तुम्हारा नाम क्या है। My beloved, I want you to think about something. मेरे प्यारो, आज मैं आप सबसे चाहता हूँ कि आप आज कुछ सोचें। If that particular man was either God or angel, don't you think that they will know his name? मेरे प्यारो, अगर वो परमेश्वर और परमेश्वर का दूत है तो क्या आप नहीं सोचते हैं कि उसे पता होगा कि उसका नाम क्या है? Hallelujah. Hallelujah. Our Lord knows everything. हमारा परमेश्वर सब जानता But है। why he is asking, what is your name? लेकिन वो क्यों पूछ रहा है कि याकूब से उसका नाम क्या है? Because God wants to confirm whether he is still the same. क्योंकि परमेश्वर ये निश्चित करना चाहता है कि याकूब क्या उसी समान है। God wants Jacob to acknowledge who he is. क्योंकि परमेश्वर चाहता है याकूब इस बात को ज्ञात करे कि वो कौन है। And this time, fortunately, Jacob acknowledged himself that he is not Esau, but he is Jacob. लेकिन भाग्यपूर्ण उसने इस बात को ज्ञात किया और उसने बताया कि वो एसाव नहीं, वो याकूब है। Hallelujah. Hallelujah. And the Lord blesses him that he will not be Jacob from now on, he will be Israel. और परमेश्वर ने उसे आशीष दिया कि वो अब से याकूब नहीं बल्कि इस्राएल होगा। Because Jacob understood with all this wealth, he cannot live a peaceful life. क्योंकि याकूब इस सभी संपत्ति के साथ ये समझ चुका था कि वो शांति पूर्वक नहीं रह सकता। If you want to live a peaceful life, अगर आप शांति पूर्वक जीवन चाहते हैं, with all the blessing that you earn in this world, इस दुनिया में आप जो संपत्ति जो आशीष कमाते हैं, you definitely need the blessing from heaven. लेकिन आप निश्चित तौर पर आपके लिए स्वर्ग से वो आशीष की You जरूरत can है। cheat on a man, आप मानव को धोखा दे सकते but you हैं, cannot cheat on God. लेकिन परमेश्वर को धोखा नहीं We दे cannot सकते। mock God. हम परमेश्वर का ठट्टा नहीं कर सकते। Hallelujah. हालेलुया। My beloved, मेरे प्यारो, with this little thought, इस छोटे से विचार I के want to साथ leave these 2 chapters with you. मैं आपके साथ ये 2 अध्याय छोड़ता हूँ। Hallelujah. हालेलुया। So God is asking you, what is your name today? और परमेश्वर आज आपसे पूछ रहा है कि तुम्हारा नाम क्या है? And God is asking you, whose hands are yours? और आपके हाथ किसके हाथ Are हैं? you coming to God only when you have a need? क्या तुम परमेश्वर के पास तभी आते हो जब तुम्हारे पास जरूरतें हैं? Or are you coming to God disguising yourself to receive a blessing? और तुम परमेश्वर के सामने अपना भेष बदलकर आशीष प्राप्त करने की तुम्हें क्या चाहिए तब आते हो? God wants to bless you today. परमेश्वर आज आपको आशीष देना If चाहता you are है। faithful to Him, अगर आप उसके सम्मुख वफादार He will हैं, be faithful to you. वो तुम्हारे लिए वफादार होगा। Hallelujah. हालेलुया। My beloved, मेरे प्यारो, I believe मैं विश्वास करता this हूँ word will be a blessing to you. ये वचन आपके लिए आशीषित होगा। God wants to bless you. परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है। Acknowledge yourself before God. परमेश्वर के सामने अपनी स्वीकृति Be करो। faithful to God. परमेश्वर के लिए वफादार रहो। He will be faithful to you. वो तुम्हारे लिए वफादार रहेगा। Come closer to Him, उसके निकट आइए, and He will come close to you. वो तुम्हारे निकट आएगा। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Amen. आमीन।